बात कांग्रेस के नए नए उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी की, जो आज दिल से बोले। कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और इस अवसर पर राहुल ने खुलकर अपने दिल की बातें की। अपने पूरे परिवार की कुर्बानियों को याद दिलाकर उन्होंने एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने यह भी बताया है कि कैसे बेटे को पार्टी में इतना बड़ा ओहदा सौंपने के बाद उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी। अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। This morning I got up at night. 4 o'clock in the morning I got up and went to the balcony. I thought, now you have a big responsibility in front of you, and people are standing behind you. People are standing on your side. It was dark and it was cold, and I decided I was not going to tell you only what you wanted to hear. I decided I was going to tell you a little bit about what I feel. I want to tell you about hope, and I also want to tell you about power. When I was a little boy, I loved to play badminton. I loved it because it gave me balance in a complicated world. I was taught how to play in my grandmother's house by 2 policemen who protected my grandmother. They were my friends. Then one day, they killed my grandmother and took away the balance in my life. I felt pain like I had never felt before. And many of us have experienced this, so you'll understand what I'm saying. My father was in Bengal and he came back. The hospital was dark, green and dirty. And there was a huge crowd screaming outside. They were very angry. And as we entered, they were screaming and shouting. It was the first time in my life that I saw my father crying. He was the bravest person I knew. And yet, I saw him cry. I could see I was his son, I was small, but I could see that my father was broken. They had taken away his mother, and he was broken. In those days, our country was not what it is today. In the eyes of the world, we had nothing. We were worthless. We didn't have money. We didn't have cars. Everybody said we were a poor country. Nobody thought about us. That same evening, I saw my father at Destination on television. I knew, like me, that he was broken inside. I knew, like me, he was terrified of what lay in front of him. Then as he spoke on that dark night, I felt a small glimmer of hope. It was like a small ray of light in a dark sky. I can still remember what it felt like, and I think if you think back, a lot of you will also remember it. The next day, I realized that many people had seen it as well. Today, as I look back, and I've had a political career now of 8 years, I'm 42 years old. Today, as I look back, I can see that it was that small ray of hope in the darkness that helped change India into what it is today. Without hope, you cannot achieve anything. You can have plans, you can have ideas, but unless you have hope, you cannot change things. You cannot move things the size of India. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands
that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. It is my experience of 8 years, and I'm sure many of you here who deal with power every day understand what I'm saying and realize the positive and the negative. And we mustn't forget that there is negative and that you have to be very careful when you administer power and when you use power. Today, India is not like it was in 1984. We are no longer worthless. We are no longer seen as worthless. Today, the entire world is courting us. Today, we are the future. And as I said before, nations are not built on schemes and plans. They are raised on a foundation of hope. I'm standing here because I believe that the Congress Party is a symbol of this hope and has a potential to embody it. I'd like to end again by saying that for me, the Congress Party is now my life. The people of India are my life. And I will fight for the people of India and for this party. I will fight with everything I have. And I invite all of you to stand up and take on this fight. Thank you. दिल से बोले राहुल गांधी, दादी की कुर्बानी को याद किया, मां के आंसुओं का जिक्र किया, और जब राहुल गांधी का दिल खुला तो तमाम बंधन टूटते गए। राहुल अपनी ही पार्टी की कमियों पर भी खुलकर बोले। हैरानी राहुल गांधी ने जताई कि सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी में ही कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी जता दिया कि अब वो आगे ऐसा नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये पार्टी कहलाती है, मगर सचमुच में ये एक परिवार है। इस बात को आप मानते हैं? ये हिंदुस्तान का, शायद दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है और इसमें हिंदुस्तान में सब लोग अंदर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है या नहीं है? तेजी से बदलाव की जरूरत है, मगर सोच समझ के बदलाव की जरूरत है और सबको एक साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव लाना है। प्यार से करना है, सोच समझ के करना है और आपकी आवाज को सुनकर करना है, सबकी आवाज को सुनकर करना है। मैं पहले यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, अब मैं कांग्रेस पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हूं। आपको यह लगना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी सिर्फ युवाओं की बात करता है। राहुल गांधी का परिवार यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, सब के सब है और आज से राहुल गांधी सबके लिए काम करेगा। और
और सबको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। और मैं आपको वायदा करना चाहता हूं, सुनिए, और मैं आपको वायदा करना चाहता हूं कि मैं आप सबको एक ही आंख से, एक ही तरीके से देखूंगा, चाहे वो यूथ कांग्रेस का हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, महिला हो, जो भी हो, जो आप कहेंगे मैं उसे सुनूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। राजनीति में मैं अब 8-9 साल से हूं और मैं एक बात समझा हूं, काम करना है, सोच समझ के करना है, गहराई से करना है और जल्दी से नहीं करना है। बदलाव हो तो लंबे तौर पे हो और गहराई से हो। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम हो कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है, ये इलेक्शन कैसे जीतता है, ये बाकी पार्टियों को खत्म कैसे कर देता है। समझ नहीं आती है बात, मगर इलेक्शन के बाद धड़ाक से कांग्रेस पार्टी जीत गई। वर्कर खड़ा हो गया, नेता खड़े हो गए। शीला जी मुझे कह रही थी कि भैया पता नहीं क्या होता है, इलेक्शन के पहले सब खड़े हो जाते हैं और धड़ाके से लड़ जाते हैं। ये गांधी जी का संगठन है, इसमें हिंदुस्तान का डीएनए भरा हुआ है। बाकी संगठन और जो हमारे विपक्ष के हैं, जो हमारे विपक्ष के हैं, वो समझते ही नहीं है इस बात को। वो देखते हैं, वो कहते हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग। कोई कहता है भैया मैं किसी एक जाति पार्टी हूं, कोई कहता है मैं किसी एक धर्म की पार्टी हूं, और कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। हम ना जात पहचानते हैं, ना धर्म पहचानते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की डीएनए पहचानते हैं। सब के सब हैं इसमें। तो दिल से बोले राहुल गांधी और खूब बोले। अपनी पार्टी की कमियों और खामियों को भी उन्होंने गिनवाया, लेकिन 2014 निशाना उनका साफ तौर पर था, संगठन को मजबूत करने की उन्होंने बात की। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का भाषण आपको कैसा लगा? अच्छा, भावुक, औसत या बेकार? ABCD आपको लिखना है, अपना जवाब आपको देना है। 80 लिखिए, स्पेस दीजिए, AB या CD, जो भी आपको लगे 52424 पर हमें SMS कर दीजिए। और नतीजे आज तक पर हम आपको बताते रहेंगे राहुल गांधी का भाषण आपको कैसा लगा। अभी तक जो जवाब हमें मिले हैं, देखिए उसमें 29% लोगों को अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेकार बताते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को 63% लोग। यानी कि ये राहुल गांधी का जो दिल से दिया गया भाषण है, वो खुद उन्होंने कहा कि मैं दिल से ये भाषण दे रहा हूं, दिल से आपसे बातें कर रहा हूं। 63% लोगों को बेकार लगा है, बिल्कुल अच्छा लगा। 29% लोगों को भावुक बताते हैं इसे 5% लोग, और 3% साफ तौर पर इसे कहते हैं औसत। कांग्रेस के नए उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहला अपना भाषण दिया और दिल से बोले। उन्होंने यह तक कहा कि मां रात को उनके कमरे में आई, रोई और बोला कि बेटा पावर जहर की तरह है। तो राहुल गांधी ने और क्या दिल के राज खोले, सुनिए। नहीं, सुनो, आ जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं और फिर चले जाते हैं। और हमारा कार्यकर्ता कहता है भैया, वो ऊपर देखता है, चुनाव से पहले वो ऊपर देखता है, ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक। नेता आता है, दूसरी पार्टी से आता है, चुनाव लड़ता है, फिर हवाई जहाज में उड़ के चला जाता है।
ये बदलना है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए, और सिर्फ कार्यकर्ता की इज्जत नहीं, नेताओं की इज्जत। नेताओं की इज्जत का मतलब क्या है कि अगर नेता ने अच्छा काम किया है, अगर नेता जनता के लिए काम कर रहा है, चाहे वो जूनियर नेता हो या सीनियर नेता हो, जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, इस पार्टी की सोच आपके अंदर है और मैं सिर्फ आपकी आवाज को आगे बढ़ाऊंगा। फेयरनेस की बात होती है। कल मैंने मीटिंग में कहा कि कचहरी में दो लोग होते हैं, लॉयर होता है, जज होता है। मैं जज का काम करूंगा, लॉयर का काम नहीं करूंगा। कांग्रेस में ताजपोशी हुई है, राहुल गांधी के उपाध्यक्ष वो बना दिए गए हैं और पहली बार जब भाषण दिया तो दिल से बोले, खूब बोले। भावुक भाषण भी था और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला भी।